السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے گل عباس۔ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے یہ گل عباس کے بارے میں۔ یہ ایک طرح کا پھول ہے جو مختلف رنگوں میں، مختلف کلرز میں پیدا ہوتا ہے۔ چلیے آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے کالے کالے بیج میں رہتا تھا، یہی میرا گھر تھا۔ اس کی دیواریں خوب مضبوط تھیں اور مجھے اس کے اندر کسی کا ڈر نہ تھا۔ یہ دیواریں مجھے سردی سے بھی بچاتی تھیں اور گرمی سے بھی۔ کچھ دن تو میں ادھر ادھر رہا، لیکن میرا گھر کالی مٹی میں دبا دیا گیا کہ کوئی اٹھا کر پھینک نہ دے اور میں کسی شریر لڑکے کے پاؤں تلے نہ آ جاؤں۔ زمین کی مدھم گرمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بس اب میں ہمیشہ مزے سے یہیں رہوں گا، مگر میرے کان میں اکثر میٹھی میٹھی سریلی سی آواز آتی تھی۔ میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ آواز کدھر سے آتی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے آتی تھی۔ آواز مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اس گھر سے نکل، بڑھ، روشنی کی طرف چل۔ لیکن میں زمین میں اپنے گھر کے اندر ایسے مزے سے تھا کہ میں نے اس آواز کے کہنے پر کان نہ دھرا، اور جب اس نے بہت پیچھا کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں تو یہیں رہوں گا۔ بڑھنے اور گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ، یہیں چین سے سونے میں مزہ ہے، میں تو یہیں رہوں گا۔ یہ آواز بند نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے ایسے پرسر انداز سے مجھ سے کہا، چلو روشنی کی طرف چلو، کہ مجھے پھریری سی آ گئی اور مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل ہی آؤں، مگر دیواریں مضبوط تھیں اور میں کمزور۔ اب جب وہ آواز مجھ سے کہتی ہے کہ بڑھے چلو، تو میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں۔ آخر کو اللہ کا نام لے کر جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئی اور میں ہرا قلعہ بن کر نکل آیا۔ اس دیوار کے بعد زمین تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب میں نے اپنی جڑوں کو نیچے بھیجا کہ خوب مضبوطی سے جگہ پکڑ لیں۔ آخر کو ایک دن میں زمین کے اندر سے نکل ہی آیا اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھا۔ کیسی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے۔ کچھ دنوں بعد تو خوب ادھر ادھر پھیل گیا، اور ایک دن اپنی کلی کا منہ جو کھولا تو سب لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا خوبصورت لال لال گل عباس ہے۔ میں نے بھی جی میں سوچا کہ اس تنگ گھر کو چھوڑا تو اچھا ہی۔ آس پاس اور بہت سے گل عباس تھے، میں ان سے خوب باتیں کرتا اور ہنستا بولتا تھا۔ دن بھر ہم سورج کی کرنوں سے کھیلا کرتے تھے اور رات کو چاندنی سے۔ ذرا آنکھ لگتی تو آسمان کے تارے آ کر ہمیں چھیڑتے تھے اور اٹھا دیتے تھے۔ افسوس یہ مزے زیادہ دن نہ رہے۔ ایک دن صبح ہمارے کان میں ایک سخت آواز آئی، گل عباس چاہیے؟ ہیں گل عباس؟ اچھا جتنے چاہے لے لو۔ ہمارے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ آئی اور ہم حیرت ہی میں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ارادہ کر رہے تھے کہ ذرا چل کر اپنے دوست ستاروں سے کہیں کہ دوڑو ہماری مدد کرو، یہ کیسا معاملہ ہے۔ اتنے میں کسی نے کینچی سے ہمیں ڈنٹل سمیت کاٹ لیا اور ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب یاد نہیں کہ اس ٹوکری میں کتنی دیر پڑے رہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ میں اوپر تھا، نہیں تو گھٹ کر مر جاتا۔ شاید میں سو گیا ہوں گا، کیونکہ جب میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا 5-6 اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک خوبصورت تاگے سے باندھ کر کسی نے گلدستہ بنایا ہے۔ آس پاس نظر ڈالی تو نہ باغ کی روشیں تھیں، نہ چڑیوں کا گانا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی دکان تھی۔ ہزاروں آدمی ادھر ادھر آ جا رہے تھے، یکے گاڑیاں شور مچا رہی تھیں، فقیر بھیک مانگ رہے تھے اور کوئی ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ میرا جی ایسا گھبرایا کہ کیا کہوں۔ ستاروں کو ڈھونڈا تو ان کا پتہ نہیں، چاند کو تلاش کیا تو وہ غائب۔ سورج کی کرنیں بھی سڑک تک آ کر رک گئی تھیں اور میں پکارتے پکارتے تھک گیا کہ مجھے جانتی ہو، روز ساتھ کھیلتی تھیں، ذرا پاس آؤ اور بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مگر وہ ایک نہ سنتی تھیں۔ شام ہونے کو آئی تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری، ہماری طرف دیکھا۔ پھولوں والے نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس زور سے جھٹکا دے کر لڑکی کے سامنے رکھا کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ پھولوں والے نے کہا، بیٹی دیکھو کیسے خوبصورت گل عباس ہیں، ایک آنے میں گلدستہ، ایک آنے میں، یعنی اس گلدستے کی قیمت صرف ایک آنا۔
लड़की ने एक अन्नी दी और हमें हाथ में ले लिया। उसके हाथ ऐसे नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद मैं बेहोश हो गया। असल बात यह थी कि पानी नहीं मिला था और प्यास बहुत लगी थी। लड़की ने शीशे के एक गुलदान में पानी भरकर हमें पिलाया तो ज़रा तबीयत ठीक हुई और मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा। अब मैं एक साफ कमरे में था जिसमें कई बिस्तर लगे हुए थे। एक तरफ से एक बीमार लड़की की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब, क्या मैं अच्छी नहीं होंगी? क्या अब मैं कभी चल फिर ना सकूंगी? क्या कभी बाग में खेलने ना जा सकूंगी? और क्या अब गुले अब्बास देखने को ना मिलेंगे? ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बंद गई। आंखों से आंसू पोंछ कर करवट ली तो उसको मैं और मेरे साथी गुलदान में रखे हुए दिखाई दिए। लड़की खुशी से तालियां बजाने लगी। पास जो नर्स खड़ी थी उसने हमें उठाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। उस प्यारी बच्ची ने हमें चूमा। उसके गोरे गोरे गालों में हमारी सुर्खी की जरा सी झलक आ गई। उस वक्त समझ में आया बीच का घर छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़ने की गर्ज यही थी कि एक दुखियारी बीमार बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी हमसे मिल जाए। ये गुलाम अब्बास ने इस मजमून को लिखा है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में एक फूल के दरख्त के उगने और उस फूल के फलने फूलने तक और फिर उसके बाद बाजार में पहुंचने और बाजार से बिक कर किसी घर तक पहुंचने और फिर किसी बीमार की खुशी का सबब बनने तक कितने खूबसूरत अंदाज में लिखने वाले ने इसको लिखा है और एक मैसेज, एक पैगाम दिया है कि हमें भी दूसरों की खुशी का सबब बनना चाहिए। किसी भी बुनियाद की चीज़ को बुनियाद बनाकर, नस्ल को बुनियाद बनाकर, रंग को बुनियाद बनाकर, मजहब को बुनियाद बनाकर दूसरों की तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहिए। माना याद कीजिए, गुले अब्बास एक किस्म का फूल जिनमें से कुछ खालिस सुर्ख, कुछ गुलाबी, कुछ जर्द और कुछ 5 रंग के होते हैं। इसे गुले अब्बास भी कहते हैं। मध्यम, धीमा, आहिस्ता, सुरीली, मधुर आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसमें सुर हो। फ्रैरी झुरझुरी के माना में, हरा किल्ला हरी कोपल के माना में है। उसके बाद गुले अब्बास का की जो अल्फाज माने हैं जो उसके और देखें, रविशें, रविश की जमा, क्यारियों के दरमियान का रास्ता, पगडंडी। इकन्नी, एक आना, एक सिक्का जो 4 पैसे के बराबर होता है। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1 है कि गुले अब्बास का घर कैसा था? इसका जवाब होगा एक छोटा काला सा बीज गुले अब्बास का घर था। वो बहुत मजबूत था और सर्दी गर्मी से उसे बचाता था। नंबर 2, गुल अब्बास का नया घर कैसा था? नया घर गुल अब्बास का बड़ा ही दिलकश था। वहाँ उसके दोस्त थे, आसमान खुला था, हवाएं ठंडी ठंडी आती थीं और रात में तारों भरा आसमान भी था। सवाल नंबर 3, गुल अब्बास ने बीच की दीवार किस तरह तोड़ी? गुल अब्बास को जब भी आवाज़ आती कि इस घर से निकल और रोशनी की तरफ बढ़ तो गुल अब्बास की हिम्मत बढ़ जाती। वो आवाज़ कहती, बढ़े चलो। वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाता। यहाँ तक कि एक दिन उसने फैसला किया और वो ज़मीन से बाहर निकल आया। नंबर 4, बाग से निकलने के बाद गुल अब्बास पर क्या गुजरी? बाग से निकलने के बाद गुल अब्बास के साथ बदसलूकी का दौर शुरू हो गया। उसे कैंची से काटा गया और एक टोकरी में रख दिया गया। फिर एक धागे से बांधकर उसका गुलदस्ता बनाया और फिर उसे बेच दिया गया। गुल अब्बास को लड़की के पास पहुंचकर क्या महसूस हुआ? जब गुल अब्बास को लड़की के पास पहुंचकर सुकून मिला तो उस लड़की के हाथ इतने नर्म थे कि गुल अब्बास की जान में जान आई। यानी उस वक्त लड़की के हाथ इतने नर्म थे कि गुल अब्बास की जान में जान आई। नंबर 6, डॉक्टर से बातें करते करते लड़की की हिचकी क्यों बन गई? लड़की की हिचकी डॉक्टर से बात करते हुए इसलिए बन गई कि अब वो बाग में कभी नहीं जा सकेगी और वो अब कभी गुल अब्बास को नहीं देख पाएगी। नंबर 7, बीमार लड़की के खुश होने की क्या वजह थी? उस लड़की के खुश होने की वजह यह थी कि जब उसने करवट ली तो गुल अब्बास और गुल अब्बास के साथी गुलदान में सजे थे। ये देखकर वो खुश हो गई। गुल अब्बास के साथ बीमार बच्ची ने कैसा सलूक किया? बीमार बच्ची ने जब गुल अब्बास को उठाकर चूमा,
बीमार बच्ची ने गुल अब्बास को उठाकर चूमा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर रौनक आ गई। अब खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। मैं एक छोटे से काले बीज में रहता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीज में रहता था। दीवारें मुझे सर्दी से भी बचाती थीं और गर्मी से भी। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के सामने से गुजरी। यहाँ लिखेंगे हम सामने से गुजरी। उसके हाथ ऐसे नर्म थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए। आप कहानी पढ़ने के बाद इन जुमलों की तरतीब मुरतब कर सकते हैं कि कौन सा जुमला पहले था। उसके बाद ये सारे जुमले आप तरतीब से लिख सकते हैं। सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, एक काला काला सा बीज ही गुल अब्बास का घर था। सही है। गुल अब्बास को दुनिया बड़ी खूबसूरत और अच्छी लगी। नहीं, गुल अब्बास का रंग पीला होता है। गुल अब्बास का रंग पीला नहीं होता। फूलों वाले ने कहा, बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुल अब्बास हैं। सही है। फकीर भीख मांग रहे थे और कोई एक पैसा ना देता था। ये भी सही है। शाम को एक बदसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी। ये गलत है। लड़की खुशी से तालियां बजाने लगी। ये सही है। उस प्यारी बच्ची ने हमें बाहर फेंक दिया। ये गलत है। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। अमली काम गुल अब्बास की कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में आप लिखिए और जिन फूलों के नामों से आप वाकिफ़ हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाइए और उसके अलावा दूसरे फूलों के बारे में भी वाकफियत हासिल कीजिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। चोर चला गया, अजनबी हाँफ रहा था, सूरज निकला। इन जुमलों में चोर, अजनबी और सूरज फ़ाइल हैं। चला गया हाँफ रहा था और निकला फ़ेल हैं। इन जुमलों में मफ़ूल नहीं है। इसके बावजूद इन जुमलों का मतलब समझ में आता है। ऐसे जुमलों के फ़ेल को फ़ेल लाज़िम कहते हैं। ऐसे फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब बता दे उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। सोना, बैठना, दौड़ना, हंसना, रोना, आना और जाना से जो फ़ेल बनते हैं वो फ़ेल लाज़िम होते हैं। गौर करने की बात है, आज की दुनिया में रहने वाले दुखों और तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। चंद लम्हों की खुशियां भी आसानी से मैसर नहीं हो पाती। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि गुल अब्बास अपने वजूद से एक दुखियारी बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी तो देता है। उसके गोरे गोरे गालों पर सुर्खी की झलक लाने में मददगार साबित होता है। लाल लाल गुल अब्बास गुलदान में पाकर लड़की खुशी से तालियां बजाने लगती है। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।